So जब Iron Man basically Stan Lee ने बनाया था, तो उस टाइम पे Iron Man wasn't a class A superhero, right? It was a class B superhero, which was used as a substitute का अगर कोई नहीं अच्छा निकल रहा comic, then we will use Iron Man ऐसा करके. But when it was introduced, तो उस टाइम पे people related with it very well, responded it to very well, to the point that it moved from a class B hero to an Avenger. Hello, ladies and gentlemen. You are listening to our podcast of Quacks and Quirks, where we sit down to have simple yet interesting conversations with people. This is your host Shrishti Singh, and joined in with me today is my co-host Enosh. Hi Enosh, how are you? Hi Shrishti, I'm doing well. And so for this episode, we don't have one but two guests joining us today. So would you like to introduce both of them? Yeah, definitely. So our first guest for today is Mr. Mahak Kothari. He is my senior from college, and apparently he's one of my very good friends as well. Our second guest today is appearing for the second time on this podcast. He has been here once before. Of course, none other than Dhruva Suryavanshi. So I'd like to welcome both of you on the show. Hi Dhruvaj and hi Mahak. Hello Enosh, thank you for having me on this show. Hope you are doing good as well. Thank you for me also to invite here again, and I am very glad so I can be a part of this. It was very nice last time, and I hope this will be a better one. Yeah, that's what we are planning to do, and exactly for that reason I've got both of you together. So मेरा idea यही था basically कि दोस्तों को मिलाओ, and Dhruvaj and Mahak have been classmates, and both of them were, kind of in a group together when I met them. So I met Mahak through Dhruvaj, and thing is, they are कैसे समझाऊं, like भावनाएं समझो यार. It won't be wrong if you call us best friends, right? So, it's not about best friend. It's like one of college. अरे best friends की बात नहीं. Your group, when I was in your group ना, it was literally a good time for me. Like literally मेरे को ज्ञान भी मिलता था, सीखता भी था मैं तुम लोगों से, and उसके अलावा क्या बोलते हैं, entertainment भी मेरा इतना अच्छा खासा होता था. And just before we were, starting. I was going to add that. So I was talking to Shrishti, okay, and I mentioned it to Shrishti that Dhruvaj was the first person in my college who was nice to me. Like before Dhruvaj, all other seniors I met were like मेरे ऊपर रॉब झाड़ने वाले लोग या फिर ऐसे थोड़े seniority रखने वाले. And then I met Dhruvaj, and then you guys, तो साला कैसे बोलते हैं वो पूरा क्या बोलते हैं, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए. ये मतलब बहुत ही बड़ी बात कर दी. मतलब इवन इनफैक्ट हम लोग को भी पता नहीं था हम लोग इतने अच्छे. थैंक यू. एग्जैक्टली. खुद को पहचानने पा रहे हैं लोग. We did something good in college, हाँ वही मतलब. But that is a good observation. हमको भी नहीं realize हुआ कि हम ऐसे थे. So thanks for pointing it out. Yeah, thanks for pointing it out. The equation is very simple. The equation was very simple. मैंने इसको वही बोला कि like they didn't have to try to be nice. All they had to do was like treat me as an equal, which you guys did. Yeah. Like that's the thing, and that made me feel better. Yep. So that made you feel better also. मैं जब मेरे first year में थी ना, तब Enosh used to treat me like एकदम similar जैसा he described for both of you. So I'm like, oh my god, now I understand कहाँ से सीखा ये. I'm like, nice. That's good. That is actually nice. वो तो था. Yeah. So once I guess the introductions are all done, and we can start. So since we all are engineers, I thought like we'll start on the subject of engineering itself. And one of the most stereotypical questions ever asked, what's the best part about engineering? Dhruvaj, you go first and then Mark.
ओके, दिस इज लाइक आस्किंग कि लाइफ क्या है करके मतलब क्योंकि इंजीनियरिंग ही में आने के बाद पता चलता है कि व्हाट यू आर एक्चुअली कैपेबल ऑफ डूइंग मींस आई हैव रेड इट समवेयर दैट इन व्हाइल डूइंग engineering you don't become a good engineer but you become good at various different things. So I guess that was engineering which helped us to understand कि हमारा सही वाला potential और हमारा thinking क्या है करके. बस हाँ कि अच्छे फ्रेंड्स मिले एंड मेमोरीज बनी, दैट इज फॉर द लाइफ टाइम, दैट इज अनक्वेश्चनेबल. बट या मींस यू गेट टू नो हु यू आर. मतलब स्कूल तक तो अपन घर पे ही रहते हैं, बस इंजीनियरिंग में आने के बाद हमारा एक अलग आइडेंटिटी बनता है जो घर से अलग होता है. सो इट हेल्प्ड अस टू आइडेंटिफाई हु वी आर. Good. Mahak, what's the best part of engineering for you? So for me also, as Dhruv said, so engineering is not just learning about engineering or becoming an engineer. It is more about learning about life, how to live it and how you want to live it. Because engineering is the first time when you come out of your closet per se, like you've never stepped out of your house for such a long duration, or let's say for such a long time. So it is first time you are experiencing something that you've not experienced before. Right, and this is where I guess the first stepping stone to your life is, because after this is what shapes or defines what you're going to do in your life and how you are going to be in your life. So I guess what engineering taught me was more than engineering, it was how to live life and life skills, I would say. Good. So actually ना मेरा इससे related 2 questions और थे, ठीक है, बट ये ध्रुवज ने उसी एक ही उसमें पूरा समराइज कर दिया. वही भाई तो सबको बोल दिया, मैं क्या बोलता. Actually पता है, I had this notion, ठीक है, कि ये पता है बहुत stereotype हो चुका है अभी कि a person if he wants to a person an engineer if he wants to be successful in his life तो he has to do something apart from engineering. तो अब like do you believe so, like ऐसा कुछ है क्या? See, it's like it's two parts of the coins. एक तरफ we can say that because of the growing number of institutes that are offering engineering, the level of engineers per se is going down in our country. उसकी वजह से people think कि सिर्फ इंजीनियर होना काफी नहीं है, you need to do something else to get a better job, a higher paying job, or you know, earn better. But on the contrary, if you see, तो बहुत सारे ऐसे भी engineers हैं who just after doing engineering are doing wonders in their life. So it is just part of the coin, I would say. जिनको engineering सिर्फ as an easy option लगता है, उसके लिए they do engineering. Obviously, to earn better, to earn a living, they have to do something else. They have to go for another degree. But जो engineering अपने दिल से engineering करते, who actually wanted to be an engineer, they certainly do find a way out after engineering do in life. So that is true actually. That वो is my सही take है, on that. क्योंकि एक्चुअली हमको खुद को भी नहीं पता होता हमको क्या करना है. यूजुअली हम बस अपने घर के जो लाइक बड़े बुजुर्ग या फिर फ्रेंड्स एडवाइस करते हैं टू टेक इंजीनियरिंग की स्टेबिलिटी रहेगा, जॉब रहेगा, सो वी टेक इट. बट अपने को बाद में लेटर कोर्स ऑफ द लाइफ वी रियलाइज कि हमको कुछ और करना था. तो वो प्रॉब्लम वही. जनरली इट इज एन इजी ऑप्शन आउट, क्योंकि देखो 12th खत्म हुआ, यू हैव टेकन साइंस, ठीक है, 10th में अच्छे मार्क्स आए, तुमने साइंस ले लिया, 12th पढ़ा तुमने, अब उसके अंदर जो एकदम डेडिकेटेड है वो बायो लेते, जो नहीं होते वो मैथ्स ले लेते. तो उसके बाद लॉजिकल स्टेप इज इंजीनियरिंग, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. एंड प्लस देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफरिंग यू इंजीनियरिंग. तो फिर यू गो फॉर इट कि चलो हाँ कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, तो डिग्री तो आई जाने वाली है. So, वो लोग सोच के इंजीनियरिंग कर लेते. That is true. इसीलिए तो इतना नंबर ऑफ कॉलेजेस भी ज्यादा, डिमांड भी ज्यादा है, इवन दो जॉब्स आर नॉट दैट मच, बट ज्यादा इंजीनियर हॉस्टल बनते ही है. प्लस क्वालिटी इंजीनियर्स नहीं निकलते ना. इफ वी टेक आवर एग्जांपल्स ओनली, इफ आई टेक एग्जांपल मेरा और ध्रुवज का ले लो, तो इंजीनियरिंग के बाद वी डिड एन एमबीए, जिसका कोई सेंस नहीं, मतलब एमबीए और इंजीनियरिंग कोई रिलेटेड नहीं है. Still, because after engineering हमें नहीं मिला, हमें वो push नहीं मिला कि we can do this in our life, we want to continue this doing our life, इसीलिए we switch to MBA, जो कि logical next step था हमारे लिए.
because engineering से we realize कि we won't get any good jobs because looking at us only we know कि हमको कोई ऐसा देगा नहीं अच्छा वाला काम, so that is the next best option for us only. हम ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे नहीं. नहीं यार. So talking about engineering, like बहुत emotional हो जाते हैं लोग, पता है when they talk about engineering. Like have you ever noticed any engineer talking about engineering? मैं खुद ही अभी बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ. अरे सही में. TVF की वो सीरीज आई थी पता है? If anyone has seen it. वो कोटा कोटा फैक्ट्री. फैक्ट्री. हाँ कोटा फैक्ट्री बहुत ज्यादा रिलेटेबल नहीं थी. काफी ज्यादा आई वुड से. काफी. हाँ. ऑल्दो मैं कोटा नहीं गया हूँ Exactly. बट वो जो Same. एटमॉस्फेयर था ना, हाँ वो रात में बंक करके सब जुगाड़ना Exactly. वगैरह वो सब हाँ. याद आ रहा था सारा. अरे बेस्ट पार्ट इज ना कि जब भी तुम ऐसा इंजीनियरिंग करने जा रहे हो ना तो लाइक एक पॉइंट तो हमेशा ही होता है व्हेन यू फील लाइक कि यार आईआईटी से कम कुछ नहीं चाहिए मुझे, डिजर्व ही नहीं करता आईआईटी से कम. सही है. that was the best तो part है. actually. एंड इसलिए मेरे को ऐसा लगता है ना कि इंजीनियरिंग इज एक्चुअली एन इमोशन फॉर अस. हमने कुछ सीखा नहीं इंजीनियरिंग में बट हमें पता है व्हाट इज एन इंजीनियर. हाँ, means it is a Actually, sort हाँ. of like क्या बोलते हैं वो एक unofficial label है that you can do anything if you are an engineer you can do anything. Exactly. तो ठीक है, let's talk about movies. ठीक है, so Mehak, you're a big Marvel fan. Oh yes, I am. So like tell me this, what are the best origin stories of Marvel comics? Like I hope that you have read comics as well. Yes, I did read comics and all. So अगर बेस्ट ओरिजिन स्टोरी की बात करें, then देखो सबसे पहले I would like to clear पहले ही that my favorite character is Iron Man. Okay, hands down Iron Man. तो वो नाम तो एक आएगा. ठीक है. Apart from that अगर अपन बात करते हैं, then I would give origin story. I would like to say Daredevil is a very good origin story. I would like to say. Apart from that, X-Men as a whole franchise provides a good origin story for each and every character. If you talk about like how they used to feel. So basically, the thing that I like most about the origin stories of X-Men was how they were outclassed, they were not accepted by the society, yet they stood together and fought for their existence so that people get to notice them and know that they also exist on the level same as the people they are living with. Just because they have some special powers, it doesn't make any sense to just outcast them and treat them like don't belong to this world. So they also have a good origin story. Favorite, I guess मुझे तो इस डेडपुल इज आल्सो मार्वल ना. मेरे को डेडपुल का लगा था. हाँ, अच्छा मतलब डेडपुल का ये अच्छा था कि इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी ही इज वेरी कॉमिक एंड ऑल. मतलब लाइक कि लोग कैसे कि यूजुअली सीरियस रहता है, सो दे बिकम लाइक एटमॉस्फेयर बिकम्स वेरी सीरियस कि उसके कैरेक्टर के आसपास के लोग, इवन कैरेक्टर आल्सो बिकम्स वेरी सीरियस, कॉन्शियस अबाउट हिज हैपनिंग्स जो होने वाला है. बट डेडपुल एज ए कैरेक्टर मेरे को बहुत ऐसा ये लगा कि उसने ही टुक इट इन अ वेरी ऐसा लाइटर वे और उसने मतलब रियलिटी को फेस किया कि हाँ भाई वो मरने वाला है. एंड येट इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर इट डिडंट स्टॉप हिम टू बिकम लाइक कि व्हाट ही इज ऐसा. तो आई गेस उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ने उसको अलाइव रखा इन अ वे. सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग कि मतलब लाइक ऐसा सुपर हीरो में ऐसा रहना एंड उसके वजह से ही इज अलाइव एंड हैप्पी एंड ऑल. सो इसलिए मेरे को वो लगा. I'd like to ask this to Inosh as well. Oh, मेरा favorite origin story would be I guess Spider-Man. Yeah, but Marvel के अंदर if there is a movie which I've seen a number of times, तो Spider-Man के पहले 3 part है. I don't know why. Here I would like to highlight something. So, in Marvel's entire Marvel comic, or let's say the entirety of Marvel, whatever it has existed, the most iconic superhero there has ever been is Spider-Man. Yeah. There hasn't been any other iconic superhero of Marvel to exist in Marvel. तो वो अच्छा ठीक है चलो. I need an answer on this. Why is it so? Why is Spider-Man so relatable to youngsters या फिर like audience की वो इतना iconic रहा है as a character?
what is so special about Spider-Man? See, what I believe, first of all, it plays on the youth, right? कि उसके अंदर जो कैरेक्टर दिखाया, he is a youth. So somewhere down the line जो कॉमिक पढ़ने वाले जैसे हम लोग हैं, तो we are also going through that same period, right? तो कहीं ना कहीं भी रिलेट हो, क्योंकि सी उसके लाइफ में भी वही प्रॉब्लम्स है कि उसके स्कूल में जाते हैं तो उसकी फ्रेंड्स नहीं है, फिर जो है वो थोड़े बहुत वो बुली करते हैं, और she has this girl MJ whom he likes but couldn't express his love to, right? तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें हम भी अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन में एक्सपीरियंस करते हैं, तो समवेयर वी रिलेट टू इट कि हाँ नहीं ये जो कर रहा है वो भी सही है, और कहीं ना कहीं अपने इनेट माइंड में होता है दैट आई वांट टू बी अ सुपर हीरो इन माय लाइफ, व्हाटएवर बी द थिंग, राइट? हम सबको ये चाहिए होता है कि मेरी स्टोरी में मैं सुपर हीरो होना चाहिए, तो हर किसी की अपनी एक स्टोरी चलती है। when you mentioned this ना महक, ठीक है, मेरे को तुरंत यही क्वेश्चन चल रहा था मेरे दिमाग में जब when you guys were talking about origin stories। कभी ये सोचा कि लाइक कोई भी सुपर हीरो का स्टोरी हो, कॉमिक हो या मूवीज हो, ठीक है, व्हाट वुड दैट मूवी बी इफ इट डिडंट हैव एन ओरिजिन स्टोरी इन इट? अपने को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ठीक है, मेरे को तो नहीं लगता मेरे को पसंद आएगा, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट स्टिल मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक ओरिजिन स्टोरीज होना क्यों नेसेसरी है? लाइक व्हाई डू वी, लाइक वो पार्ट अपने दिमाग में रह क्यों जाता है? ओरिजिन स्टोरी वाला कोई भी हीरो का ले लो तुम। Somewhere because it forms the base of a character, right? It forms who the character is in your mind. So the first impression of a character is through his origin story. Okay. तो जैसे एक्चुअली कंटिन्यू नहीं, मैं आई वाज जस्ट सेइंग कि मतलब लाइक कि टू रिलेट विद द कैरेक्टर, जस्ट लाइक ही सेड लाइक अ यूथफुल स्पाइडरमैन का था कि दिस ऑल आर द थिंग्स व्हिच वी गो थ्रू इन योर, एक अपना जब कॉलेज का टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है, तो ये सब एक्चुअली हमको एक बेस का एक स्टोरी हमको हेल्प करता है टू रिलेट विद दैट कैरेक्टर ऑन पर्सनल लेवल। So when you start relating it on a personal level, you start thinking कि हाँ भाई हमारा भी ऐसा हो सकता है, maybe we are also caught in that particular circumstance। मतलब हम जब स्कूल में थे, I think every one of us might have thought कि मुझे भी कोई स्पाइडर आके काटे and I'll also become Spider-Man। We used to look at the spider कि ये आके काटेगा and suddenly I'll be also transforming into that। So I guess this story help to emotionally people को connect करता है, वो ऐसा है। Nice। ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मार्क से। तो व्हेन यू सेड कि आयरन मैन इज योर फेवरेट कैरेक्टर, मार्वल कैरेक्टर, ठीक है, मेरे को डीसी कॉमिक्स का बैटमैन, ठीक है, काफी ओरिजिन स्टोरी काफी सिमिलर लगता है। सिमिलर नहीं, बहुत डिफरेंट है, बट देयर आर कॉमन पॉइंट्स इन बोथ ऑफ देम। लाइक उन दोनों के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, ठीक है, दोनों की फैमिली रिच है, ठीक है, फिर दोनों जो भी पावर्स दे हैव इज मोस्टली इंजीनियर्ड बाय देमसेल्व्स। मतलब आयरन मैन का ज्यादा विविडली दिखाते कि इट इज इंजीनियर्ड बाय हिम, जबकि बैटमैन का इट्स लाइक उसको बैठा बैठा मिल जाता है बिकॉज़ हिज फादर ओन्स अ वेपन्स एंड डिफेंस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कुछ था। तो लाइक आई डोंट नो, मैं जितने लोगों को मिलता हूँ, दे हैव दिस, स्पेशली आफ्टर दीज मूवीज, डार्क नाइट सीरीज के बाद, ठीक है, पीपल वर so mad about Batman, ठीक है, तो which would you choose, like which would you prefer, would you even compare Iron Man or Batman? इधर I would say कि दोनों अपनी अपनी जगह पर लेजेंड्स है, ठीक है। बैटमैन जब मतलब थोड़ा इधर I would go into the geek side, so जब आयरन मैन बेसिकली स्टैन ली ने बनाया था, तो उस टाइम पे आयरन मैन वाज़न्ट अ क्लास ए सुपर हीरो, राइट? इट वाज अ क्लास बी सुपर हीरो व्हिच वाज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट का अगर कोई नहीं अच्छा निकल रहा कॉमिक, देन वी विल यूज आयरन मैन ऐसा करके। बट व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो उस टाइम पे इफ यू रिमेंबर, या अभी भी, वी ऑल लाइक टू प्ले विद गैजेट्स और लेट्स से टेक्नोलॉजी, है ना? तो उस टाइम पे people related with it very well, responded it to very well, to the point that it moved from a class B hero to an Avenger, and Avenger तो सबको पता ही है, it is like the epitome of Marvel, right, है ना? और बैटमैन अगर अपन बात करते तो सबसे पहले तो बहुत पहले आया था as compared to Iron Man,
एंड देन वो ऑलरेडी एक क्लास ए सुपर हीरो था, राइट? मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई हेट बैटमैन या ऐसा कुछ, आई लव दैट कैरेक्टर, ठीक है? मतलब बीइंग अ मार्वल ऐसा नहीं कह सकता ना कि आई हेट डीसी, ठीक है? उसके अंदर आई आल्सो लव बैटमैन। जो ट्रिलॉजी थी, आई रियली यू नो हैट्स ऑफ टू क्रिस्टोफर नोलन, जो बनाई है उन्होंने। और ओरिजिन स्टोरी हाँ सिमिलर है, बट यू नो बैटमैन इज मोर ग्लूमी ग्रिटी कैरेक्टर। एग्जैक्टली, मैं बोल रहा हूँ उनके पर्सनालिटी कितने डिफरेंट है आयरन मैन हाँ, एंड बैटमैन। पर्सनालिटी बहुत अलग है दोनों की। लाइक बैटमैन का कैरेक्टर इज एंटायरली वेरी सीरियस, वेरी ग्लूमी, एंड सीरियस, उसका हाँ सिटी हाँ गॉथम itself is created in such a manner जहाँ पे it's filled with crime and hatred, जबकि आयरन एग्जैक्टली, मैन का feels more relatable, like हमने हाँ उतने इट इज मोर गंदे रियल। cities देखे नहीं। हाँ क्योंकि इट इज बेस्ड आउट ऑफ न्यूयॉर्क ना, तो न्यूयॉर्क इज हाँ लाइक हाँ अपने नेबरहुड जैसा है, ठीक है। neighborhood। नॉट एग्जैक्टली बट रिलेटेबल, हाँ नेबरहुड तो नहीं रिलेटेबल, होगा। ऑब्वियसली I didn't know कि सूरत के बाजू में नया न्यूयॉर्क करके। नहीं एक्चुअली वही नेबरहुड अपन पहले से देखते आ रहे हैं ना स्पाइडरमैन एंड ऑल में, तो लाइक न्यूयॉर्क कभी ऐसा लग गया है कि मूवी का घर हो गया अपना, कि ये एक अपना कहीं होगा ही घर वहां पे, ऐसा है। हाँ लाइक कम ऑन, मूवी में तो न्यूयॉर्क हो सकता है, नहीं पर वही लाइक वैसा है, बट नहीं, ही सेड नाइसली कि मतलब दोनों का एक तो वर्ल्ड भी अलग है, एंड मोर ऑफ द बैटमैन का एज इन वेरी लाइक गॉथम का इट इज मोरली फिल्ड विद क्राइम, मतलब डार्क साइड ज्यादा है गॉथम का एज सच, so that is why he has to be थोड़ा सा in a way serious and not so forgiving types। मतलब इसमें मार्वल में एक चीज ये है कि मतलब दे आर वेरी ऐसा ओपन अबाउट इट, मतलब जैसे फर्स्ट सीजन के एंड में, फर्स्ट मूवी के एंड में ही एक्सेप्ट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी दैट ही इज आयरन मैन, मतलब दैट एक्चुअली टेक्स वेरी गट्स टू एक्सेप्ट कि भाई मैं ही वो सुपर हीरो हूं करके, वैसा तो बैटमैन कहीं करता नहीं है, बिकॉज ऑफ द सिटी एंड बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड इट लिविंग देयर। सो आई गेस वो डिफरेंस है दोनों वर्ल्ड में एंड दोनों के अप्रोच में। इधर इधर बहुत अच्छा पॉइंट ध्रुवज लेके आया कि गट्स वाला जो पॉइंट है ना, सो आयरन मैन का ये भी एटीट्यूड है, ही जस्ट गोस फॉर इट, ठीक है? इफ वी लुक इनटू द मूवीज अल्ट्रॉन के टाइम पे, ठीक है बनाते हैं, he doesn't shy away from anything, right? कि ये करेंगे तो कुछ इसका नेगेटिव होगा या क्या होगा, he is like एडवांसमेंट हो रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है इससे, if he thinks कि कुछ अच्छा हो सकता है, he just goes for it, ऐसा। तो that level of confidence he carries with him. he perfectly means like वो बहुत सहीली उसने कैरेक्टर वो प्ले किया है ना, so that is why you can't imagine any other person playing that, मतलब he looks like that playboy philanthropist and scientist kind of guy, मतलब जो है वैसा। So it is very nice. Okay. And talking about in the these movies like Batman series versus Iron Man के 3 movies like जो निकले थे, तो I'd like to ask this question to 3 of you, ठीक है? तीनों को पूछता हूँ कि which series is the better one according to you, Iron Man series or Batman series? I'm talking about movies and not comics, and based on movie sense, ठीक है? कि which series would you feel is better? Mahak first. Okay, तो इसको देखो कंपेयर करने के दो तरीके, एक इफ वी जस्ट टॉक अबाउट दीज 3 मूवीज, ठीक है, कि उन्होंने कितना काम किया, दैट्स इट, ठीक है? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं आगे लेके चलता हूँ, तो ट्रिलॉजी को अगर अपन देखें, जो बैटमैन ट्रिलॉजी थी, इट हैज टू लाइक इट इज द बेस्ट। आयरन मैन के जो 1 2 3 पार्ट से सोलली अगर मैं सिर्फ वो 3 पार्ट की बात करता हूँ, तो वो उस लेवल पे नहीं थे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर अपन बात करते आयरन मैन 1 दैट वाज रिलीज्ड बैक इन 2008, so वो मूवी थी which created the base for the Marvel Cinematic Universe, or let's say the end game which we watched right now. It all started from that movie. So you know the importance of that movie to start off a cinematic universe that will go on to create 22 movies, blockbuster, all of them, and you know give us this end game or Infinity War live in action. तो अगर वो इम्पोर्टेंस की बात करें दोनों के अंदर, तो आई वुड से कि जो आयरन मैन का इम्पोर्टेंस था तीनों मूवीज का इन एमसीयू, इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, वाज वे मच हायर देन बैटमैन ट्रिलॉजी इन डीसी यूनिवर्स।
Yeah, I agree. Actually, that is why we are very close friends because our thinking matches very much. But वो उसने बहुत सहीली point out किया कि उस universe में it was more of a larger picture Marvel में कि they wanted to create a larger picture जहाँ पे उसका importance सही से highlight हो. But as compared to here in Christopher Nolan's, he was only, I guess, hired to plan out only these 3 movies, I guess. So इसीलिए उसने वो 3 movies में बहुत ही मतलब detailedly and everything he covered in those 3 movies. So somewhere if we compare कि movies के structure में बैटमैन में सब चीज कवर होती है, इंसैनिटी से लेके ह्यूमैनिटी एवरीथिंग, बट मार्वल में इट वाज अ ड्रॉप ऑफ अ होल सी. ऐसा है, दैट इज राइट वे ही हैज पुट इट कि मतलब दोनों अपने अपने जगह पे सही है. ऐसा Trishti? Yeah, so like with no offense to Mehak as well as Dhruvaj, मैंने ना like I've never been a fan of Marvel movies, and not because like obviously बहुत अच्छी movies हैं, but like मैंने कभी इतना patience रखा नहीं अपने अंदर ना to sit back and watch a superhero movie. तो of course मैंने कुछ movies देखी हैं, first Spider-Man देखी हैं, Batman trilogy देखी हैं, but as far as कि मेरे को comment करना हो कि ना which superhero is the best one, या like in terms of movies कौन सी superhero की movie would be the best, I would say Batman trilogy क्योंकि मैंने बाकी सारी देखी ली है. What according to you, what is your opinion on this? Actually, I'll go with Batman trilogy, and the basic reason for that is the way that Christopher Nolan makes movies. And this is very particular because मेरे को पता पहली बार realize हुआ था when Dark Knight release हुआ था, and I watched the Dark Knight entire movie. ठीक है, it involved less of his superhero gimmick, and it involved more of him as a person. Yeah. That was right. The whole idea of doing that was Christopher Nolan's idea where he has to picture out कि वो normal human का उसमें कितना role है before being a superhero. Superhero, right. If you see that, पता, and I loved it, पता, I'll suggest this, ठीक है. किसी ने ये देखी है Superman, which was Man of Steel, हाँ, Man of Steel था, which was directed by Christopher Nolan. No, I don't think Man of Steel is था. It was not Superman का कोई भी उसने नहीं किया था. I don't think उसने किया उसने. जो last part निकला था ना Superman का, which was it? Man of Steel. Man of Steel ही था. हाँ, तो if you see that movie ना, I've seen Superman की movies इसके पहले मैंने देखे थे, ठीक है. It was always about his powers and how he fights the villain. लेकिन तुम Man of Steel देखो, although it was a big flop, ठीक है, वो चली नहीं movie. And people don't associate it with Christopher Nolan ever, but still I find that movie to be very good and very different क्योंकि उसने एक different approach लिया था. इसमें पहली बार मेरे को दिखा कि Clark Kent का जो real life है ना, like as a human, उसके ऊपर उसने story जो portray किया था, and I found the same thing while he was doing this Batman trilogy. So the reason I'm going with Batman trilogy is because I love Christopher Nolan. Simple as that. His way of making movies. That's why I'm going with this. बाकी Iron Man movies, for Iron Man या Avengers movie मेरे लिए हमेशा से it's always been, कैसे बोलते हैं, masala movies. Like you'll never be disappointed after watching a Marvel movie, but you can be disappointed after watching Batman trilogy. No, it is like I think darker side ऐसे exist करता है. I think it is more like कि DC जो है ना वो थोड़ा सा more of like a realistic scenario दिखाता है, which might not be always having a happy ending. But on the other side, Avengers जो है ना वो थोड़ा सा एक fictional इसमें लोगों को जगह देता है कि जो लोग हमेशा सोचते हैं ना एक sci-fi, typical sci-fi कि यार fiction में मैं ऐसा करूँगा, मैं इसको बचाऊंगा, मैं I'll do this and that. So that imagination they captures it very nicely. So इसीलिए वो even though मसाला भी है ना, but उसमें imagination and जो scientific चीजें होती है ना, means many things like कि villains के terms में होने दो या gadget के terms में होने दो या किसी भी terms में, वो जो एक imagination जो एक normal person जो रखता है ना कि यार अगर मेरे को power होती तो मैं ये करता वो करता, तो वो बहुत ऐसा सही से capture किया है. बट बैटमैन और डीसी इसमें रहता है ना कि इट इज मोर ऑफ लाइक इमोशनल एंड डार्क साइड, तो वो मतलब ऐसा नहीं कि गलत है, इट इज जस्ट टेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल. ऐसा है. हाँ, मतलब वो completely subjective है, like कैसे इंसान कैसा पसंद. Either I would like to question all of you.
जैसे कि इनोश ने राइटली पॉइंट आउट किया कि मैन ऑफ स्टील भी क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट की थी, बैटमैन ट्रिलॉजी भी नोलन ने डायरेक्ट की थी, बट कहीं ना कहीं क्या तुम्हें लगता है रीजन बीइंग बैटमैन ट्रिलॉजी वाज अ हिट, समवेयर डाउन द लाइन हीथ लेजर को अपन इधर थोड़ा वो दे सकते हैं, बिकॉज अगर उसने जो पार्ट जोकर का प्ले किया उससे ज्यादा रियलिस्टिक आई डोंट थिंक सो कोई भी उसके पास भी पहुंचा है. So had it been not Heath Ledger playing the part of Joker, would you think कि Batman trilogy जिस heights पे पहुंची है वो पहुंच पाती? I guess उतने terms में नहीं होता. What you said is right actually. Heath Ledger actually played a very important role, and the way he actually showed it, उसने जो दिखाया ना वो character का मतलब playing on screen, so that is uncomparable. I don't think कि कोई दूसरा होता तो वो इतना मतलब सही elegantly उसको perform करता. तो वो तो एक definitely one of the reasons था ही, but वो एक था कि एक जो character का जो psyche था, मतलब जो उसका understanding था कि उसका एटीट्यूड था टुवर्ड्स थिंग्स, टुवर्ड्स पुलिस, टुवर्ड्स सोसाइटी एज सच, तो वो थॉट प्रोसेस भी जोकर का बहुत मतलब अलग था. मतलब एक्टिंग तो है ही है और उसका थॉट प्रोसेस भी एज ए कैरेक्टर का ना बहुत डिफरेंट था, जो तब तक किसी ने आई गेस इतने साइकोपैथिक विलन को कभी देखा नहीं था या फिर पर्सन को भी नहीं देखा था आई विल से. तो वो साइकोपैथिक जो चीजें थी वो आई गेस तभी अपने को पहली बार पता चली थी कि लाइक दिस पीपल आल्सो एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, एंड उसने दिखाया इतना रियलिस्टिकली था कि इट माइट बी पॉसिबल कि कोई भी हो सकता है. जैसे अभी ये जो जोकर आया था लास्ट ईयर, उसमें इफ यू सी वो मोर ऑफ जोकर का बैक स्टोरी है कि कैसे वो जोकर की डायरेक्शन में जा रहा है. सो इट इज अ नॉर्मल पर्सन व्हिच यू सी ऑन अ लोकल ट्रेन और बस एंड ऑल दैट. सो वो साइकी जो डेवलप जो था कि वो फर्स्ट टाइम हुआ था कि जब ये डार्क नाइट में दिखाया गया था कि ऐसा कोई बंदा, एक नॉर्मल बंदा में भी इतना पोटेंशियल है कि वो एक सुपर हीरो को चैलेंज कर सकता है ऐसा. See, I completely agree with Dhruvaj, but एक point अगर तुम लोग note करोगे ना तो Heath Ledger, ठीक है, the critical part that he played in making this particular series a hit, ठीक है, उतना ही critical part वो play कर रहा है अभी to make other movies, you know, not to be so appealing to other like to audience. The reason being कि अभी का जो जोकर रिलीज हुआ, if you say it, one of the biggest issues के साथ ये रहा कि वो जोकर कैरेक्टर had to match up with the level which was set up by Heath Ledger. Like मेरे को तो इतना वो कैरेक्टर Heath Ledger ही पसंद था. I was like कि मैं क्यों ही देखूं ये जोकर, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता किसी और को उस रोल में. That is true. It's like बहुत पता है ऐसा हो गया. अभी हम मूवीज देखें जब भी कैसे बोलते हैं, when we are making superheroes from comics, ठीक है, and उसको मूवी एडाप्टेशंस करते हैं, तो अब ऐसा हो गया ना कि we don't see the कैसे बोलते हैं सुपर हीरो कैरेक्टर, बट rather we see those actors. तो हम कोई दूसरे मूवीज में जब वो एक्टर्स एक्ट करते हैं ना तो we don't find it that appealing, या फिर कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते यार. you like अब तुम लोग इसको ही देख लो, क्या है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है, whenever we talk about रॉबर्ट डाउनी जूनियर उसका कौन सा पर्सनालिटी याद आता है, हमें टोनी स्टार्क याद आता है. एग्जैक्टली. हाँ. So वो it's like characters and actors काफी वो हो गए, क्या होते हैं, intermingled हो गए. Like we are not able to separate them. By the way, पता है, I used to believe कि Robert Downey Jr. was not per se a good actor, क्योंकि all the films that मैंने उसके देखे थे, including Sherlock and वो सब, I didn't believe कि वो एक बहुत ही you know अच्छे लेवल का एक्टर है. As when I was comparing him with Christian Bale and मैथ्यू मैककॉनॉही, उस लेवल का एक्टर नहीं है, मुझे ऐसा लगता था, ठीक है. तो क्योंकि उसका आयरन मैन कैरेक्टर काफी यू नो इजी टू पुल ऑफ था, एंड उसके सारे वो सिमिलर शेड्स वाले कैरेक्टर्स ही प्ले भी कर रहा था दूसरे मूवीज में. बट देन देयर वाज दिस मूवी कॉल्ड एज द जज करके, अगर किसी ने देखा द जज. हाँ, तो व्हेन आई सॉ द जज ना एंड आई सॉ हिम acting for the first time, like इतना खुश था ना, I was like blown away, man, this guy knows how to act. First time उसने कोई ऐसा रोल प्ले किया था which didn't ask him to be a you know playboy type persona, playboy type, हाँ, normal person, मतलब as in उसके बाकी personalities से compare करेंगे तो normal person. हाँ, exactly. And उसके बाद से I was a fan of Robert Downey Jr. कि he knows acting. Like I'm convinced कि he's a good actor.
वो तो है, मतलब ही हैज दैट एबिलिटी, मतलब कि वो अपने आप को पोर्ट्रे बराबर, ही गेट्स इनटू द स्किन ऑफ दैट पर्सन ना, तो इसीलिए उसका वो बहुत सही से निकलता है। एंड एक्चुअली वही हो गया है कि जैसे एज यू टोल्ड ना, क्रिश्चियन बेल एंड दिस मैथ्यू मैकॉनी, इनके पास ना वेरिड रोल्स बहुत है। मतलब क्रिश्चियन बेल का आजकल तो हमेशा हर बार ही आता है कि अगर क्रिश्चियन बेल के अलग अलग मूवीज के फोटोज होते हैं, किसी में मोटा, किसी में पतला, किसी में एकदम ये स्किन बड़ा हुआ, तो उनको रोल्स भी शायद उतने मिले ना कि दे वर एबल टू एक्सपेरिमेंट देमसेल्व्स मोर। ऐसा मैथ्यू मैकॉनी का भी वो डायलस बायर्स क्लब में यू कैन सी कि ही इज वेरी हाँ स्किनी एंड एग्जैक्टली ऑल। हाँ, एग्जैक्टली। आई गेस उनको क्रिश्चियन एक्सपेरिमेंट बेल करने के लिए वो, मशीनिस्ट में। हाँ मशीनिस्ट में, तो वो एग्जैक्टली। आई गेस उतना सब उनको प्लेटफॉर्म मिला है, सो दे हैव एक्चुअली डन इट अच्छा, वेरी नाइस। लाइक आई डोंट नो, लाइक मैं ये क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ अभी, लेकिन आई थिंक आई शुड आस्क दिस। मुझे ये बताओ कि डू यू थिंक हाउ वुड यू रेट अ एक्टर टू बी अ गुड एक्टर? Just because he tries or he experiments a lot with his characters that he's playing in different movies, या फिर just because he has done one good character? ठीक है, how would you rate an actor? मेरे को ऐसा जानना है। like I believe कि मेरे को ज्यादा रिस्पेक्ट उन एक्टर्स के लिए होता है who try to experiment more with their roles in different movies, but कुछ ऐसे एक्टर्स रह जाते हैं who you know stick to the same sort of character that they have built. What do you guys think? Like मैं सबको पूछ रहा हूँ। सृष्टि। सो हाँ, मेरे को बोलना था फर्स्ट थिंग कि लाइक पहले जो आपने बोला ऑन दिस थिंग कि ना एक्टर्स के साथ हम जोड़ देते हैं कैरेक्टर्स को, एंड हाँ, तो हम कैरेक्टर्स को एक्टर्स के साथ जोड़ देते हैं, देन वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दैट। मतलब अगर वो सेम कैरेक्टर कोई और एक्टर भी प्ले करेगा तो वी वुड वांट इट कि नहीं, अगर वो वाला एक्टर होता ना तो इट वुड हैव बीन बेटर। तो मेरे साथ तो ऐसा है, लाइक टॉकिंग पर्सनली, एंड लाइक अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो हाँ, लाइक डेफिनेटली अगर कोई एक्टर है और वो बहुत सारे रोल्स में एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा एक्टर होगा, तभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एंड पर मेरे लिए एक्चुअली बोथ ऑफ द थिंग्स मैटर। अगर उसने एक कैरेक्टर भी किया है एंड ही हैज डन लाइक ब्रिलियंट उस रोल में, तो भी इट्स लाइक ब्यूटीफुल, लाइक इट्स अ ट्रीट टू योर आईज, मतलब अगर मैं बोल सकूं तो। एंड ऑल्सो आप पहले जोकर की बात कर रहे थे ना, ध्रुव सेड की जोकर वाज, क्या बोलते हैं, ऐसा बेंचमार्क था, लाइक पीपल हैड नेवर सीन ऐसा कैरेक्टर पहले, उस तरह का साइकोपैथ, एंड लाइक वैसा तो शायद वैसा कैरेक्टर कभी बनाया नहीं था किसी ने, ऑल्सो किसी ने कभी ऐसा एक्ट भी नहीं किया था। बट अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी उसके डिप्रेशन एंड ऑल सब चीज़ों के बारे में, एंड आई रियलाइज कि कितना ज़्यादा फील करके वो कैरेक्टर किया होगा उस इंसान ने। बट एनीवेज, और इनफैक्ट लाइक जब जोकर मूवी बनी होगी तब जोएकिन फीनिक्स के ऊपर भी कितना प्रेशर रहा होगा, लाइक ही हैज टू लिव अप टू दैट कैरेक्टर, यू नो। हाँ, एंड वो लाइक उसका पुराना वाला लाइफ पोर्ट्रे कर रहा था, व्हिच वाज लाइक, और उसमें भी ही डिड सो गुड। तो अगर वो बंदा आगे जाके इफ ही डज नॉट लाइक एक्सपेरिमेंट्स विद हिज रोल, तो भी मेरे को ऐसा रहेगा कि नहीं यार, लाइक ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। तो मेरे लिए लाइक एक कैरेक्टर भी मतलब बहुत मैटर करता है। कैरेक्टर वो भी है कि मतलब वैरायटी एक्चुअली वो तो है कि समवेयर इट मैटर्स कि तुम कितने वैरायटी ऑफ रोल्स कर सकते, पुल ऑफ कर सकते हो, तो एक वो डेफिनेशन तो है एक्टर में। जैसे इफ यू सी अपने इंडियन कंटेक्स्ट में भी कि विद्या बालन हैज डन वेरी लेस मूवीज, बट शी हैज ऑल आई गेस एक्सपेरिमेंटेड इन एवरी मूवी। मतलब स्टार्टिंग के तो मूवीज छोड़ दो, बट अभी उसका शकुंतला देवी इज आल्सो कमिंग। सो ये मतलब अपन मैं ये नहीं कह रहा कि शी इज ऑलवेज डूइंग दैट वुमन सेंट्रिक या फिर एक वुमन लीड में है, बट एक्चुअली शी इज एक्सपेरिमेंटिंग। सो इंडियन एक्ट्रेसेस में वो थोड़ा देखना मतलब डिफिकल्ट है, मतलब इतना इजीली दिखता नहीं है। तो वो एक अच्छी चीज है कि शी इज एक्सपेरिमेंटिंग, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि एज अ पर्सन वो उतने कैरेक्टर को सेटिस्फाई कर पा रही है क्या बाय थ्रू हर एक्टिंग। तो उससे अपने को पता चलता है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो पसंद आए लोगों को, जैसे बॉम्बे वेलवेट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था, बट आई डोंट नो, आई लाइक्ड इट बिकॉज वो बॉम्बे 50s-60s का, एंड रणबीर कपूर प्लेड वेरी वेल, बट क्रिटिक्स को भी ठीक ठाक लगा, बट ऑडियंस को इतना अच्छा लगा नहीं। तो
वो हर किसी का एक परसेप्शन है देखने का कि कैसा क्या है करके, बट अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज गुड फॉर देम आल्सो एंड इट इज ट्रीट फॉर आवर आईज आल्सो. महक सी अगर मैं बात करता हूँ तो if I have to define a good actor, तो एक अच्छा एक्टर वो होता है कि जो पार्ट उसको दिया गया है टू प्ले, वो जो ऑडियंस उसको फील हो कि हाँ ये वो चीज प्ले कर रहा है या इट इज सिनोनिमस टू दैट थिंग, राइट. अब जो आप लोगों ने बात करी कि ही और शी इज एबल टू प्ले मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो दैट इज वर्सेटिलिटी, राइट. कि हाउ गुड you know how versatile an actor is in playing different roles. Obviously this is a good trait to have in a good actor, but अगर सिर्फ versatile है and he is not able to you know कि audience को अगर वो feel नहीं आ रहा उसको देख के कि हाँ नहीं ये वही चीज है जो कि story में चल रहा है या जो story में होना चाहिए था, then I don't think कि वो एक अच्छे actor की you know निशानी है. अच्छा actor मेरी नजर में वो है who can portray what he is given to the audience and audience can feel the same about it. Means basically convince people that he is that person करके. Exactly. हाँ तो moving ahead, in fact, I want to ask all the three of you कि you know we are the young generation, ठीक है, and we are like very much accustomed to easy वाली चीजें, right? like सब कुछ फटाफट चाहिए, सब कुछ फटाफट हो जाता है, तो and we are very, if I can say, we are very addictive to social media sites and all these things. So what do you think कि like why do you think ऐसा है, like why are we becoming so addictive to these things, and also क्या इसका कोई negative impact है या you find it to be cool? Yes. हाँ वो बात तो ये कि we are getting addicted to social media slowly, and just because of lockdown also now everybody is like continuously मतलब वो scrolling चल ही रहा है सबका, Facebook, Instagram, Twitter, everything. So वो भी एक reason है, but more of एक reason तो starting में तो ये था कि मतलब जिसको I guess friends और वो सब मिलता नहीं था, so they used to have this portrayal of an online image. कि they can be anything, so it was an escape. It started as an escape to the people. कि अपन यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, we can whatever way we can describe ourselves, अपन कुछ भी बात कर सकते हैं, मतलब not in a bad manner, but वो थोड़ा सा मतलब हटके था कि not अपन जो जैसे है वैसा नहीं है. बट धीरे धीरे ना उसने इतना मतलब वो बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में इतना सडनली आ गया कि नाउ लाइक अभी सब अब्यूजिंग एंड एवरीथिंग हैज स्टार्टेड ऑनलाइन, एंड इट इज टू मच एक्चुअली. ट्रोल्स जो है या मीम्स जो है समवेयर की वो एक थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा वो मतलब ये कर देते, हर्ट कर देते. मतलब पहले क्या था, इतने इजीली चीजें मिलती नहीं थी, अपने को सोचना पड़ता था या फिर कुछ ढूंढना पड़ता था. आजकल हर चीज को अपन तुरंत सोशल मीडिया में देखते हैं, क्या है क्या नहीं ऐसा करके. तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस में इन अ वे कि वो पहले अपन ज्यादा क्रिएटिव और वैसे अडेप्टेबल हुआ करते थे, अभी थोड़ा अपन रिजिड हो रहे हैं, जैसे ट्रेंड चल रहा है वैसा है. और वो तो है कि लाइक इट इज अ गुड साइड आल्सो कि उसकी वजह से रिकॉग्निशन भी बहुत मिला. जैसे वो फेमस वीडियो तुमने देखा होगा, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक. सो दिस थिंग्स हैपन कि टिकटॉक का एक अच्छा ये भी था कि इट गेव प्लेटफॉर्म टू दोज पीपल कि जो थोड़े रूरल बैकग्राउंड से थे या फिर जो थोड़े से लोअर इनकम क्लास से थे, जिनको एक था एक रहता है ना एक ड्रीम हर किसी का कि मुझे भी ऐसा मैं किसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को दिखूं. So I guess TikTok catch that in a very nice manner, but वही है कि like some people took it in nice way, some people took it as a very फालतू एंड बेकार थिंग. तो वो हर किसी का वो है. तो वही है कि ज्यादा ओवरलोड होने लगेगा तो एक्सट्रीम्स भी उतने ही बढ़ते जाएंगे ऐसा. तो आई वुड लाइक टू ऐड इधर, जैसे कि सृष्टि आपने बात किया कि अभी हमको काफी इजी चाहिए, कन्वीनियंट चाहिए सब कुछ, राइट. तो अभी थोड़े दिन पहले आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल. वो आर्टिकल का वो था कि जैसे कि अगर हम अपनी वाली जनरेशन, अगर जैसे कि आप, मैं, इनोज, ध्रुवज, हम सब ऑलमोस्ट एक ही जनरेशन में लाइक करते, ठीक है. तो हमारी जनरेशन इज वेरी यूनिक. द रीजन बीइंग, हमारे जो पेरेंट्स थे दे यूज्ड टू बिलीव इन हार्ड वर्क. दे यूज्ड टू बिलीव कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. आपको जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट. और अगर हम हमारी इमीडिएट नेक्स्ट जनरेशन देखते
which are termed as millennials. They believe in smart work. Yeah. वो सोचते कि जितना स्मार्टली काम हो सकता है that defines कि कितने इंटेलिजेंट तुम हो. कहीं ना कहीं जो हमारी जनरेशन है, अपन चार लोग की जैसे जनरेशन की बात करूं, कहीं ना कहीं हम इन दोनों के बीच में है, जिसको पेरेंट्स ने तो ये बोला था कि तुम हार्ड वर्क करो, बट हम अगर हम हार्ड वर्क करते हो, हमें दिख रहा है कि हमारे से एक नीचे जनरेशन जो कि स्मार्ट वर्क करते हो हमसे आगे निकल रही है, या लेट्स से इज ऑन द सेम लेवल, राइट. तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, विच मंत्रा वी शुड एक्ट ऑन. तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से अभी करंटली लुकिंग इन द सिनेरियो हम वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स दैट स्मार्ट वर्क सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट थोड़े एजेड लोग जैसे कि हु आर इन देयर 30s, तो उन लोगों के बच्चे हो चुके हैं, राइट. तो दिस इज व्हाट दे सी ऑल अराउंड. तो दे आर ड्रॉन टुवर्ड्स दैट कन्वीनियंस साइड, दे आर ड्रॉन टुवर्ड्स कि हाँ हमारे बच्चे भी उसी में है, तो हम भी ट्राई करते हैं अडेप्ट करने का उनकी तरफ, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाए. तो आई गेस वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से अभी जो ये शिफ्ट देखने को मिला है कि हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, या अगर अपन इंडस्ट्री जोन में बात करें तो ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं. तो आई बिलीव दैट इज आल्सो रीजन कि ये जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है वो हम देख रहे हैं. What would you like to say? तो सोशल मीडिया लाइक मेरे को हमेशा से इस मुद्दे पे बात करने का बहुत शौक रहता है, बट Yeah, I was waiting actually. See, is social? तेरे दो questions थे, दोनों को मैं आंसर कर देता हूँ. Plain and simple. Is social media addictive? Yeah, is why social not? media Why not? addictive? Yes, it is. Is social media? Does social media have a negative impact on society? I believe so. Yes, it does. And दोनों को मैं justify करता हूँ. So first of all, social media addictive है. It's a scientifically proven fact. ठीक है. I was reading this. Acha, एक minute. Let me rephrase my question, because when I'm saying it has a negative impact, I feel कि हर अच्छी चीज का एक negative impact. I'd like to clear this out. I'll clear it out. कि कोई भी substance जब create होता है ना, तो it's got two sides of it. One is use and second is abuse. It depends on the person who's using it. Yeah, so and that's why. Yes, that's why I want to rephrase this question कि do you feel कि social media is doing more bad than good? No, that is a very difficult question to answer, because like मैं उतना experienced नहीं हूँ उस field में, and मैंने उतना data research किया नहीं. I can talk about my own subjective experience to it regarding it. And like, when I say addictive, I think the reason why I am not on social media, ठीक है, basically is because I don't trust myself. It's simple as that. मैं किसी पे भी hooked up हो सकता हूँ, and I've seen myself, spending hours and hours on different things. तो and मेरे को तो कोई चीज ऐसी भी होती है, like I'm not able to sleep for nights. Like मेरे को उठ के फिर से वही देखना. That's what the reason I don't use it is, because like I don't trust myself. I get addicted to things and I don't trust it at all. Second is social media having a negative impact on society. लाइक मैं मेरा सराउंडिंग देखता हूँ तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी मिनिस्क्यूल लेवल पे, ठीक है, बहुत ही लोकल लेवल पे जो मेरे दोस्त हैं, तो वहां पे मेरे को आई वुड से कि नेगेटिव इम्पैक्ट है. द रीजन बीइंग कि इट्स क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी इन पीपल, ठीक है. लाइक पीपल डोंट फील कॉन्फिडेंट अनलेस एंड अनटिल देयर ओपिनियन और देयर वर्क इज नॉट अप्रिशिएटेड ऑनलाइन, ठीक है. And they're asking for validation. They're trying to create an image out of what public is trying to tell them, or what public is trying to comment on their work. तो उससे उनका इमेज डिफाइन होता है, and that's how they're trying to create their entire personality. तो I find it कि like कुछ ओरिजिनलिटी रह नहीं गया तुम्हारे. एंड ये मेरे फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, मेरे आसपास जो मैंने देखे हैं उनके अंदर मैं बोल रहा हूँ. तो that in that sense I'll say कि it has a negative impact, but I don't think कि social media was actually, when it was created, I think कि उसके most pious intentions रहे होंगे. जैसे हम history textbooks में या फिर normal textbooks में हम पढ़ते हैं कि इंटरनेट का अध्ययन इसलिए हुआ था ताकि वो लोगों को करीब ला सके, globalization and all this करीब ला सके, right. चीजों पे it's good. It's like it's we people who are using it and abusing it. We can't put it on social media. Actually, मतलब I somewhere down the line मतलब I would say कि इनोशना जो बात बोली है काफी हद तक सही है, but
जैसे बोलते कि एक सिक्के के दो पहलू होती है, ऑन द कॉन्ट्री इफ यू सी, तो सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोग, इफ आई टॉक अबाउट, हेल्प देम इन ओपनिंग देयर बिजनेसेस, राइट? हाँ, definitely. If you know, Facebook business and Instagram business is a legit thing. People are Yeah. earning a good amount of money from it. Yeah. ठीक है, आई डू बिलीव कि अगर अपन उस एस्पेक्ट में देखते हैं कि हाँ सही बोला इनोश ने, जैसे कि बहुत सारे यंगस्टर्स और आई वुड से कि लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे एन इमेज दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी और देयर पीयर्स और फ्रेंड सर्कल, क्लोज वंस। बट अगर उसको अगर दूसरा एंगल से देखते हैं तो इट इज गिविंग अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद दोज हु नॉर्मली दे वोंट हैव बीन एबल टू कनेक्ट टू। Yeah. दिस इज कितना इंटरेस्टिंग ना, मतलब जैसे आपने अभी बोला कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से इतना पैसा भी कमाया लोगों ने उससे, एंड इन फैक्ट वो तो इफ यू आर लिविंग इन 2020 ना, तो 2010 का 10-15 साल पहले तो ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और वहां से लेके आज तक जकरबर्ग कहाँ पहुंच गया, एंड बाकी लोगों के बिजनेस वहीं पे है। We've added something towards the progress of Mark Zuckerberg. ऐसा feeling आता है कि he is rich just because of us. But to add to Mark's point, ठीक है, when he suggested कि like businesses कैसे use कर रहे social media को, तो मैं like prior to doing like this entire recording, I was listening to Inkl का CEO Gautam Mishra. So Inkl, I don't know you guys know about this app or not. Inkl करके एक app है which is termed to be the Spotify for news, ठीक है। Like basically what Spotify does is वो एक library है, ठीक है, it doesn't hold anything, like उनका कोई खुद का hosting platform नहीं है। What they're doing is they're creating a library and वो फिर user preferences के ऊपर तुम्हें suggestions देती है, ठीक है, and it tries to bring out content based on your likings. तो वैसे ही ना Inkl करके एक app है which actually does the similar thing but to news, ठीक है। तो उसका CEO जो है, his name is Gautam Mishra, and उसका एक इंटरव्यू चल रहा था with News Laundry। तो उसमें यही डिस्कशन चल रहा था कि न्यूज ऑन सोशल मीडिया कैसे इम्पैक्ट करता है। तो उसमें गौतम आंसर्ड इट इन दिस मैनर, ठीक है। ही सजेस्टेड कि सी फेसबुक एंड दूसरे सोशल मीडियाज जो है, ठीक है, वो ओपन सोर्स है। एनीवन कैन come out and act themselves or say, वो लोग बोल सकते हैं ऐसा कि we are a legit source, ठीक है, and then they can publish anything and people would take it seriously, ठीक है। तो as a platform itself, social media, ठीक है, was never designed to contain news। जब क्योंकि news is actually to be coming from a legit source, and people involved in publishing news and creating news, those people should be someone who has done immense amount of research and have been working in that field। तो as a design ये social media कभी platform designed ही नहीं था to accommodate news into it। तो जब तूने बोला कि businesses के लिए भी होगा, तो I thought कि हाँ ये news के अंदर like news is something which won't fit into social media, but apparently social media has become the most popular source of news आजकल। तो like WhatsApp university हम बोलते हैं, it's become that way, but I don't think when he pointed it out कि it is not designed for containing news, I think that's a very valid point and very legit point regarding this thing। Actually वो ये कि those people who actually intelligently used it in a way कि जैसे news and story create करने में कि मतलब जो शायद सही हो या ना हो, तो उन्होंने इतना वो efficiently use कर लिया कि ना वहाँ पे ज्यादा लोग हुक अप। इनफैक्ट अपना भी टीवी भी देखो, टीवी के न्यूज भी अपने अच्छे रहे नहीं है, तो वी डोंट हैव ऑप्शंस नाउ टू गो। मतलब न्यूज़पेपर भी ठीक ठाक ही देता है न्यूज, मतलब न्यूज़पेपर के न्यूज आर समटाइम्स आर मच बेटर देन द टीवी वाला। टीवी में तो और भी खराब है। न्यूज़पेपर के न्यूज बड़े ठीक ठाक से आ रहे हैं। हाँ, because if you look at this every day, मतलब अभी क्या रह गया है, that रवीश कुमार said it very nicely कि अभी क्या है, सिर्फ वो होस्ट आता है, जैसे रियलिटी शो चल रहा है ना, तो बस होस्ट आता है। अभी एंकर्स नहीं रहे, या फिर जो एक रिसर्च रहा था एक इसमें जर्नलिज्म नहीं रहा है, वो जर्नलिज्म ही खत्म हो गया। So somewhere that is happening, इसीलिए अभी सोशल मीडिया भी एक वो सॉल्यूशन बनाए कि यहाँ से भी ढंग के न्यूज दे पाए ऐसा करके। But don't you think
सी एक पॉइंट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि अगर अपन देखें तो आफ्टर ऑल जो न्यूज कंपनीज है दे आर होस्टिंग अ बिजनेस, राइट? दे वांट टू डू अ बिजनेस, ठीक है? तो बिजनेस का बेसिक जो कंसेप्ट होता है, यू हैव टू बी वेयर योर कस्टमर इज, राइट? और अभी के टाइम पे इफ वी सी तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन ऑफ लेट्स से वीडियोस या आर्टिकल्स फीड होता है थ्रू सोशल मीडिया। तो अगर कोई न्यूज चैनल उस जगह सोशल मीडिया पर प्रेजेंट नहीं है तो दे आर मिसिंग आउट ऑन अ ह्यूज चंक ऑफ ऑडियंस दैट दे कुड हैव रीच्ड टू। That is completely true. That is true. But issue ये है नहीं, ना, that is true. Actually, I was saying the quality of the news actually वहाँ पे भी रही है, but quality of news improve कर चाहिए। दोनों जगह पे रही है, but दोनों जगह पे quality जो है वो उसका मतलब एक journalism का एक ethical एक moral चीज होता है, उसको आप वो नहीं, degrade मत exactly that is the point ना कि when you are publishing news, ठीक है, it needs to come from a legit source which people have recognized as something which is a media organization, ठीक है? तो अगर let's say organization is putting out a particular news on social media, that is valid, you have to take it on face value, but अब ऐसा नहीं रहा. It's like you follow people and those people के opinions become news for you. ऐसा हो गया. Let's say that is also a very small, एक छोटा सा point add करता हूँ, ठीक है? What यहाँ पे क्या होता है कि Indian audience जो I don't think they are able to differentiate between distinguish between opinions and facts in news, ठीक है? तो अगर if you follow a particular let's say anchor या फिर TV host, ठीक है, एक particular news media का, वो भी तुम्हारे लिए backfire कर सकता है in the sense कि तुम उसको follow कर रहे हो and वो कभी भी अपना opinion भी place कर रहा हो सकता है, news भी place कर रहा होता है, but the audience who is following it would always take it as news, like वो इस particular channel के लिए work करता है, we understand him to be a legit source and he's saying this and this, which means it would be this and this, but it's not so. Thank you so much Dhruvaj and Mahak for doing this with us. We love having conversations with you and if possible we would love to have you again, okay, kabhi bhi on the show whenever you guys are free. And Shrishti, anything? Yes, it was actually great having Mehak and Dhruvaj together, and thank you Mehak for coming and talking with us, and thank you to Dhruvaj as well, like for accepting our invitation again. Yeah. Thank you actually. Which is an achievement. I would like to thank you guys for giving me and Dhruva this opportunity to share a platform to speak our mind freely in front of you guys. Yeah, so thank you for that opportunity. Seriously, thank you actually calling me again. It's like I'm like feeling already like a celebrity now. like jokes apart, but it was but jokes apart, it is really nice. ये मतलब actually said right कि हम लोग को we like to speak our minds out ऐसा कि like बात करने में मजा आया. So it was nice. Thank you for being with us for this episode of Quacks and Quirks. If you liked this episode, do share it with your friends and family. If you want to help us continue producing such content, support us by logging onto our website qnqpodcast.in. Be sure to join us next time as we indulge in yet another interesting conversation.